So here we start with the first set of habits which moves a person from the dependence to independence, and the first habit is be proactive. So what is the proactivity? If we go by the dictionary meaning, then the proactivity is just taking the initiative. But here, so we will start with the first habit, which is be proactive. So we will understand what is the proactivity. So if we go by the definition meaning, then it is more than taking an initiative. It is the taking the responsibility of our life. And what is the responsibility? Is our ability to respond, कि हम कैसे respond करते हैं. हमारा जो respond है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल के ऊपर बेस होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर. तो कर्म है तो कर्म के पहले हमें कर्ता को देखना है. अगर हम वो नहीं देख पा रहे हैं तो हम अच्छे से कर्म भी नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ वी टॉक दिस थिंग इन द इंडियन फिलोसफी की हम बात करें तो हम एक एनालॉजी लेते हैं. यहाँ पे एक पेड़ है, उसकी रूट्स हैं और फ्रूट्स हैं उसके. तो जो उसकी रूट्स हैं वो हम हो गए, कर्ता डूअर हो गया. जो उसका तना है वो कर्म हो गए, उसके फ्रूट्स हो गए, वो कर्मफल हो गए. तो हम जनरली किस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं? हम कॉन्सिक्वेंसेस पे कंसंट्रेट करते हैं, हमारे क्या रिजल्ट चाहिए हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं. बट हमें कंसंट्रेट रूट्स पे करना है, मतलब हमारे खुद के ऊपर करना है. इस पूरी अगर हम देखेंगे सीक्वेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रूट्स ही हैं, राइट. तो अब हम अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा अपने से दूर करके हम अपने आप को देखेंगे और साथ में अपने सिचुएशन को, एक्सटर्नल स्टिमुलस को देखेंगे, राइट. तो हम रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं इसको समझने के लिए एक फेमस पेवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट था. हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एनिमल बर्ड्स में कैसे काम होता है. सो whenever food is offered to a dog, he salivates. This is the unconditioned response to the unconditioned stimulus. अगर फूड देंगे तो सैलिवेट करेगा ही. दिस इज द जनरल सेंस. नाउ what have been done? The food was presented with the ringing bell. Each time when the ring bells, the food was offered and the dog salivates. These things was continued for the some time, and after some time what happens? The food was not served, only ring was belled, but again dog salivates. So अब ये चीज़ क्या है? कंडीशनिंग है. The dog salivates. Dog shows the unconditioned response to a conditioned stimulus. अब हमने फूड नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई तो क्या हुआ? कंडीशन रेस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस हो गया. तो हमारे साथ ह्यूमंस में भी ये होता है. हमारे साथ पास में कुछ हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं. इस चीज़ में कॉन्शियस थिंकिंग बीच में नहीं आती है. तो जो रिएक्टिव रेस्पॉन्स होता है उसके बीच में, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग होती है, कॉन्शियस थिंकिंग नहीं होती है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन वर्ल्ड, द 3 टाइप ऑफ कंडीशनिंग आर वाइडली एक्सेप्टेड. द फर्स्ट इज जेनेटिक कंडीशनिंग. इसमें क्या होता है कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, वाई? बिकॉज माई फादर वॉज द सेम. The second is psychic conditioning, means the past experience, my upbringing has led to this behavior. And the third is environmental conditioning, means I am blaming for the external environment for my condition. I am saying कि यहाँ पे वॉर चल रहा है, अभी तो मार्केट में ग्रोथ ही नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं. So this is the reactive response, and this is the condition of reactive people. Reactive people try to absolve themselves from the responsibility, victimize themselves, and just blame others or the external condition for their condition or any work they are not able to do. But if we practice our consciousness, then between the stimulus thing and response, the freedom to choose exists. And what is the freedom to choose? The conscious thinking exists between the stimulus and response. In the worst case scenario, we can use our imagination, the self-awareness, the conscience of what is right and wrong, and independent will, which is free from external stimulus to respond in a particular situation. Now, one example has been given in this book of Viktor Frankl. Viktor Frankl was a deterministic in the nature. He believes whatever happens in the childhood shapes the future. But once he was captured in the Nazi concentration camp, his whole family was persecuted except her sister. Then he was afraid and alone. Then he started slow and steady. He started isolating himself from the external stimulus. He was calm. He was able to think, and he was able to isolate himself from the external conditions. So basically, he started liberating himself. So हमें वो चीज़ practice करनी है. So we all have various kind of problems, like health-related issues, like national budget, GDP issues. Now at the present time, civil war is going on in Syria.
तो इसमें जिन चीज़ों में हमारा मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस चीज़ों को यहाँ पर एक सर्कल ऑफ नो कंसर्न में रखा हुआ है. द सेकेंड थिंग इज सर्कल ऑफ कंसर्न. सर्कल ऑफ कंसर्न ऑथर ने डिफाइन किया जहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है एंड वी कैन डू समथिंग अबाउट देम. जैसे हम अगर एक प्रोएक्टिव पर्सन की बात करें तो वो हमेशा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे ज़्यादा ध्यान देता है, जो चीज़ उसके कंट्रोल में उसको करने की कोशिश करता है. सो एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लोज एंड ये सर्कल बड़ा होता चला जाता है और सर्कल ऑफ कंसर्न श्रिंक होता है. ऑन द अदर साइड जो एक रिएक्टिव पर्सन है वो हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न पे ही ध्यान देगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, उसका माइंड सेट ही नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस विल कीप श्रिंकिंग. एक ये चीज़ बताई गई है. सो द पैराडाइम शिफ्ट हियर इज टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, making it larger. Now again the problems can be divided into three parts where we have the direct control, the problems which are related to our own behavior. So the problems related to our own behavior can be solved by working on first three habits, which are the habits of private victory. Then the second type of problems comes the indirect problems where we have the indirect control. Then if these problems are related to others' behavior, then can be solved by working on habit 4, 5 and 6. And there are some where we have no control. Then what we just need to do, we just need to smile and accept and do not strengthen them to control ourselves. This is one way of living a life. So हम काम कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है. तो अब जैसा कि गीता में भी बोला गया है, कर्म पर हमारा अधिकार नहीं होता, तो जो कर्म फल पर हमारा अधिकार नहीं होता, जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये सर्कल ऑफ कंसर्न में आ जाते हैं. इसमें हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है. मिस्टेक्स है, मिस्टेक अगर एक बार हो गई तो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए. कम्स टू द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. अगर हम इसकी बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं क्लाइमेट चेंज का. वो थोड़ा सा अलग है बट मैंने इसको रिलेट करने की कोशिश की है. अभी क्लाइमेट चेंज की सीवेरिटी हमें हर तरफ देखने को मिलती है. इतने फिनोमिनास हो रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, कंटिन्यूसली हीटिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अभी जैसे पेरिस क्लाइमेट डील थी 2015 में, इसमें बोला गया था कि हमें जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये 1.5 तक रखना है, और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है टिल द एंड ऑफ 21st सेंचुरी. एंड दिस वाज कंपेयर्ड विद द प्री इंडस्ट्रियल टाइम विच इज़ 1850 to 1900. तो अब इसका एक ऑब्जर्वेशन था, एक IPCC की रिपोर्ट थी कि जो 2011 से 2020 तक जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो 1.1 डिग्री हुआ है. अब हमें लगता है कि 1.1 डिग्री तो बहुत कम है, हम उसको ध्यान नहीं देते, बट हम इसकी सीवियरिटी को समझने की कोशिश करते हैं. टेम्परेचर राइज हर जगह सेम नहीं होता है. लैंड पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है कंपेयर टू द सी. तो अगर हम इसको देखें तो जैसे 2011 से 2020 में अगर 1.1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है तो लैंड पर 1.59 हुआ है, और जो सी पर हुआ है वो 0.89 हुआ है. इसके अलावा जो टेम्परेचर डिफरेंस, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ठंड होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, और ये चीज़ें भी ट्रॉपिकल जो रीजन्स होंगे वहाँ पे ज़्यादा होता है. तो अगर टेम्परेचर मान लीजिए 1.59 बढ़ा है तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जो ट्रॉपिकल रेंज में कंट्रीज़ आती हैं, उसके अंदर 3 to 4 टाइम्स होगा. इसके बाद जो गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में और ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा. तो मतलब हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ है कि हम लोग जी नहीं, लाइफ विल नॉट बी सर्वाइवल. तो लेकिन अभी ये चीज़ हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में है. हम सबको पता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. हमें सर्कल ऑफ कंसर्न में हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई मतलब भी नहीं होता है इससे जनरली, या इसको नो कंसर्न में भी बोल सकते हैं. तो ये चीज़ हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आनी चाहिए. कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को सही रख सकते हैं. तो ये बस थोड़ा सा एक सजेशन के लिए था. सो जो प्रोएक्टिव पीपल्स होते हैं उनका कंसर्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे होता है. सो द पैराडाइम शिफ्ट हियर इज टू आइसोलेट योर माइंड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड कंसंट्रेट ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. प्रोएक्टिव पीपल्स की लैंग्वेज ये हम बात करें तो उनका कहता है कि हम कोई एक अल्टरनेटिव देख सकते हैं, और अगर रिएक्टिव लोगों का देखें तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. इस तरह की चीज़ें जरूरी होती हैं. सो नाउ अनूप सर विल एक्सप्लेन द सेकंड हैबिट. थैंक यू. जो अगर कट्स बारे में अगर देखें, जो लास्ट में बताया उसने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और इसके बारे में, वो मेन है इसका कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो हमेशा उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करता है जिसको उसका कोई विचार नहीं होती है. ठीक है, वो उस चीज़ को कभी नहीं टच करना चाहता है जो उसके मतलब ही कैन डू इट. ही ऑलवेज वांट टू डू
a change which he doesn't have any influence on that. वो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ बैठ के कुछ भी बोलेगा, ये चेंज कर दूंगा, वो चेंज करो, लेकिन वो ख्याली पुलाव है, वो कभी पकेगा नहीं। जिस पे आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो ये हैबिट्स जो हैं, मेन अपने को उसी चीज़ पे बदलाव लाने की कोशिश करनी है जिस पे हम बदलाव ला सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो आदमी होता है वो अपने खुद को बदलाव लाना है, उस पर कभी आदमी ध्यान नहीं देता, अपने पर बदलाव लाने पे कभी ध्यान नहीं देता है। वो दूसरे को बोलता है चेंज हो जाओ, मैं अंकुर को बोलूँगा वो टाइम से आना शुरू हो जाए, लेकिन वो खुद नहीं आएगा टाइम से, ठीक है ना। तो पहले अपने आप को चेंज करिए, और फिर जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसको आप बता सकते हैं, जैसे आपका सबऑर्डिनेट्स है, उसको आप थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने इमीडिएट बॉस को थोड़ा बहुत शायद कर सकते हैं, लेकिन उसको ऊपर वाले को नहीं कर सकते। अभी मैं किसी भी सोनू की डोनाल्ड ट्रम्प साहब कुछ भी मेरी बात मान लें, मैं ऐसा चाहता हूँ कि इंडिया को फेवरेबल सब कुछ कर दे, नहीं हो सकता ना, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को चेंज करिए, और जिसको आप चेंज कर सकते हैं उस पर करिए। बहुत बढ़िया।